Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 5th of March. The first topic is Russia sees Europe largest nuclear plant, that is Zaporizhzhia की जो nuclear plant है उस पे अटैक की है रशिया ने. This is a big concern which has definitely shocked the entire globe. Second, IMA urged Prime Minister to accommodate the Ukraine returned student. We'll see the detail about the news as well. Third, understanding the general consent for the CBI, something very important for the polity section. Second last, new Guinea species discovered in Tamil Nadu. And again, is the editorial, our data is not for sale, right? So this is something very important which will give an insight about the privacy issues and data which is being sold by the government of India. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ questions at the end. And these questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelim examination. And just to tell you, we are not discussing the news that is on the repetition. जैसे कि UN में अभी इंडिया ने फिर से वापस abstain किया है voting से, पर इंडिया ने vote ही नहीं किया. तो we have already discussed that news. So that repetition of news is not being discussed. We are more concerned about the news that is relevant and that is a quality news that will definitely help you for the examination part. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our updated app 2.0, where you can download a lot more other things like video and blogs, A to Z study materials, news and article. So this is something that will help you through the entire journey. So do check it out. And video के description में इसके link दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. Starting with the first news of the day, that is Russia seizes Europe largest nuclear plant. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains, that is effect of policies and politics for developed and developing countries. So recent में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, उसी कंटेक्स्ट में फर्दर जो चीज़ें वर्स हो रही है, यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है कि जो रशिया के फोर्सेज हैं, दे हैव बम्बार्डेड इन द यूरोपियन लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट विच इज़ बेस्ड इन यूक्रेन. In the this plant is known as Zaporizhzhia nuclear plant, right? वहाँ की जो बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पे आग देखी गई है, and even some of the building structure has been damaged by the Russia forces and their attack, right? So the fear of potential nuclear disaster is something which can happen. और जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन अराइज कर रही है फॉर द एंटायर वर्ल्ड कैपिटल्स, राइट? सो Zaporizhzhia nuclear plant is something which is that very important at this juncture. अगर इसमें कुछ भी परेशानी आई, then it can lead to another nuclear disaster in the world. So no indication of elevated radiations. जो US Energy Secretary है, they have said that there was no indication for the elevated radiations level from the plant which provide more than fifth of the electricity in the Ukraine. जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें टोटल नंबर में 5वें नंबर पे आती है, जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है यूक्रेन में. Now, early reports of the incident at the power plant sent financial market, जहाँ पे एशिया के लिए भी बहुत बड़ी कंसर्न है, जहाँ इट इज़ बेसिकली अगर ये इस तरह से अटैक्स होती है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इट विल फाइनेंशियली लेट मोर बर्डन टू द एशियन कंट्री एंड मेनी अदर कंट्रीज हु इम्पोर्ट बेसिकली क्रूड ऑयल, राइट? तो ये एक बड़ी कंसर्न है, नॉट ओनली द न्यूक्लियर डिजास्टर ऑल्सो, बट द फूड इन्फ्लेशन और जो पूरी ओवरऑल क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत हाई हो सकती है. Now, the US president has spoken to the Ukrainian president, where they will get the update on the situation. And definitely, US is backing Ukrainian, और भी जो यूक्रेन के सपोर्टर्स की अगर बात करें, France is supporting, all the European Union countries are supporting. But at this point of time, Russia is something which is which can definitely lead to another consequences to many other countries. तो इस टाइम पे UN में वोटिंग भी हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी वोटिंग हुई है, जहाँ पे 143 कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया है कि यूक्रेन में जो वॉर हो रही है वो गलत है. नाउ यूएनएससी होल्ड मीटिंग विद दिस पर्टिकुलर बेसिकली जो अटैक हुई है वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट में Zaporizhzhia में. So recently the United Nations Security Council member has expressed the alarm with regards to the nuclear attack which has taken place in Iran. So you can say incident, not an attack actually. So जो रशिया फोर्सेस की तरफ से ये बम्बार्डिंग की गई है वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट में, which is raising a concern. Now, the International Atomic Energy Chief has said that the Council has no reactor. वहाँ जो इंस्पेक्शन की गई अभी तक कोई जो रिएक्टर्स हैं
वो डैमेज नहीं हुई है, कुछ बिल्डिंग्स है जो वहाँ पे डैमेज हुए हैं. Now, several Western countries, including the United States and UK, has spoke out to the Russia for endangering the nuclear facilities. जो वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो endangered है, बेसिकली कभी भी किसी भी तरह सस्टेनेबल है जिस तरह से अटैक हो रही है. Now, while other countries, including India and China, are more general expressing alarm about the situation and blaming each other. So, at this point of time, each and every country, even if it is a developed country or developing countries, that they want इस तरह की जो nuclear radiations है, जो nuclear war है, even the nuclear susceptibility to the world is a big concern. Now, this is a map, something very important for you to understand, and this is something which would be again relevant for the prelims examination. This is Zaporizhzhia plant, the fire at nuclear plant that was seized by the Russian forces after overnight shelling. So, बहुत सीलिंग की गई है वहाँ पे, बमबारी हुई है और बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं उनको भी डैमेज की गई है. Now, talking about the Chernobyl basically plant, which is no longer in use, which was actually a part, now it has been overtaken by Russia. अब देख सकते हैं रशिया टेरिटरी में ही है. तो ये कुछ बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं. दिस इज द साउथ यूक्रेन, दिस इज मिलेंस्की एंड दिस इज रिनोवो. सो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अभी एक्टिव फेज में है एंड समथिंग रशिया वांटेड टू लुक इनटू द इश्यूज दैट ये यहाँ पे कंट्रोल भी करना चाहते हैं. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स इज मूविंग फॉर यू. द मैपर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक सी, no, Napier Seas, and again the Sea of Arvos is something that would be relevant for your examination. Now, IMA urged Prime Minister to accommodate the Ukraine returned student. This particular news is important for General Studies Paper 2 in mains. That is issues related to development and management of education and health. सो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने रिसेंटली रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर से और कंसर्न रेज की है वैसे स्टूडेंट्स को लेकर के जो अभी यूक्रेन से वापस आए. ऑल द स्टूडेंट्स हु वर स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन एंड दोज ऑफ मेनी ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आईएमए ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, दैट वैसे बच्चों को उनकी जो क्लासेस हैं, उनके जो मेडिकल स्कूल्स हैं, उनको वन टाइम मेजर्स गवर्नमेंट लेते हुए उनको एकोमोडेट करे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या जैसे भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी उन पे. सो इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली दिस वुड बी गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, राइट. सो द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज स्टेटेड दैट वैसे स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, दे कैन बी एकोमोडेटेड इन द MBBS कोर्स इन इंडिया और अप्रोप्रिएट डिस्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है सीट की, and which should not be counted as a final intake in their capacity, right. जिस तरह से गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है कि हर साल हमने कितने बच्चों को इंटेक ली है, उससे अलग इसकी डेटा पेपर होनी चाहिए एंड दीज स्टूडेंट शुड बी एकोमोडेटेड इन द मेडिकल कॉलेजेस, ताकि इसके जो टाइम है किस तरह से इसका रिपरकशन होगी, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. प्रॉपर सर्टिफिकेशंस की बात की गई है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू IMA ये कहा गया है कि जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं रेलिवेंट अथॉरिटी से लेने की ज़रूरत है और यूक्रेन के साथ एक जो परमिशेबल एग्रीमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में उनमें उन बच्चों को एकोमोडेट की जाए जो अभी रिसेंटली आए. सो ऑन पासिंग दिस विल बी अ गुड दैट इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स विल नॉट हैव टू काउंटेड एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, दे कैन बी एन इंडियन सिटीजन, जहाँ पे यहाँ पे ही वो उनकी ग्रेजुएशन काउंट की जाएगी. Now, the number of medical students who have sought admission for the medical in the Ukraine is substantially, यहाँ पे एक वेरियस स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन भी देखी गई है और किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ते हैं तो आपको इंडिया में वापस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ की MCI की एंट्रेंस देनी पड़ती है. दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट. नाउ फ्यूचर को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है बिकॉज जो IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन है यूक्रेन में वो कब नॉर्मल होगी इसके लिए वी डू नॉट हैव एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट इतने टाइम तक बच्चों की जो एग्जामिनेशन टेनोर है या फिर बात करें जो पूरी ओवरऑल जो उनकी स्ट्रक्चर थी पढ़ाई की वो पूरी तरह से टूट गई है, रिदम टूट गई है, जिनको पढ़ाई पूरी करने में भी टाइम लगेगा. ऑल्दो मेडिकल की MBBS की डिग्री ही 5 years की होती है, उसके बाद भी अब जो डिले होंगी दैट वुड बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, राइट. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, दिस इज व्हाट द IMA हैज़ टू से कि नॉर्मैलिटी अभी भी मेंटेन होने में काफ़ी टाइम लगेगी. सो इसी कंसर्न में ये रेस की गई है कि स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड है उनको उनके एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जाए, राइट. सो द एसोसिएशन हैज़ रेस्ड कंसर्न अबाउट द फेट एंड फ्यूचर ऑफ देयर मेडिकल स्टूडेंट्स. दोज स्टूडेंट्स स्पेशली दे वर द पार्ट ऑफ Ukraine or many other foreign universities. Now, the other news, understanding the general consent for CVI. This particular news is important for General Studies Paper 2, function and responsibility of union states and issues pertaining to the federal structure. This is something very important for your prelims examination and also for the mains examination. किस तरह से general consent
इंपॉर्टेंट होती है सीबीआई के लिए, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। एंड यू कैन फाइंड दिस न्यूज़ इन द एक्सप्लेन पेज ऑफ टुडेज इंडियन एक्सप्रेस। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने डिसाइड किया है कि वो विड्रॉ करेंगे जो जनरल कंसेंट दी जाती है सीबीआई को किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और द मेघालय हैज़ बिकम द 9th स्टेट इन इंडिया डूइंग सो, राइट। 8 और स्टेट्स हैं, उसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। So Meghalaya have become the 9th state in the country, and Meghalaya is currently ruled by the Sangma National Party, NPP कहते हैं, which is an alliance with the Bharatiya Janata Party, which is a part of the National Democratic Alliances. सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न भी यहाँ पे नोट करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप मेंस में लिखते हैं तो। इन नवंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दे हैव रेज्ड कंसर्न विद द सबमिशंस मेड बाय द सीबीआई, कि ऐसे 150 रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है कुछ स्टेट्स के पास। कुछ स्टेट्स के लिए, ऐसे 8 स्टेट्स जिन्होंने ऑलरेडी जनरल कंसेंट बैन किए हुए, और इन स्टेट्स के लिए सीबीआई के पास 150 रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो जब तक ये स्टेट्स परमिशन नहीं देंगे सीबीआई को, then this executions, or you can say the criminal procedures, cannot be further started or processed. So this was the concern raised by the Supreme Court, and they have said that this is something which is delaying the another request made by the CBI. Now क्या होती है जनरल कंसेंट, किस तरह से ये काम करती है सीबीआई में? अगर देखिए जो वर्किंग है, इसकी जो प्रोसीजर है, दिस इज गवर्न्ड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसको डीएसपी एक्ट भी कहते हैं, 1946। एंड इट मेड मैंडेटरी, जहाँ पे कंसेंट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेना मैंडेटरी हो जाता है बिफोर दे इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। सो परमिशंस जो है ये मैंडेटरी है यहाँ पे। बट सेक्शन 6 जो है डीएसपी की, ये कहती है कि कंसेंट ऑफ द स्टेट टू एक्सरसाइज द पावर एंड जुरिस्डिक्शन। अगर आपसे सेक्शन पूछा जाए एग्जाम में, सो दिस वुड बी सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट। नाउ जनरली जो कंसेंट होती है वो स्टेट्स की तरफ से दी जाती है, बिकॉज सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ सीमलेस इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे करप्शन के केसेस होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉयज़ के लिए, सीनियर ऑफिशियल्स हों, पॉलिटिशियंस हों, किसी को लेकर के भी, तो कंसेंट वहाँ के लिए मैंडेटरी होती है। Now the consent of the state to the CBI can either be case specific or in general. Now NIA की एक्ट इससे काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि सीबीआई की जो एक्ट है और जो एनआईए का एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, तो सीबीआई के पोजीशंस को देखते हुए एनआईए की अगर बात करें, सो एनआईए की इन्वेस्टिगेशंस में किसी भी तरह की जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये पैन इंडिया वर्क करती है एंड इट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पे जो स्टेट की परमिशन है वो मैंडेटरी नहीं होती। Now, amendment that was made to the Prevention of Corruption Act 1988, गवर्नमेंट ने 2018 में एक amendment लाया था, that has this was brought by the central government to exercise the power over CBI not just to administratively but also legally. Now 2018 में हुआ क्या? The government has pushed a parliament amendment जहाँ पे section 17A that mandatorily make the CBI to seek the central permission before registering the case into the corruption against the government servant. वैसे ऑफिसर्स जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे हायर लेवल के हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैंडेटरी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या उसके बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है उनसे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट द करप्शन केसेस रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई हैज़ ड्रॉप टू 14% फ्रॉम 2017 टू 2019। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डेटा हैज़ टू स्टेट। Now, कुछ स्टेट्स ने जिन्होंने विड्रॉ किया कंसेंट को, आई वाज अबाउट टू टेल यू इन डिटेल लाइक विच पर्टिकुलर स्टेट्स हैव विड्रॉन दैट। सो मिजोरम हैज़ बिकम द 9th स्टेट्स जिन्होंने अभी परमिशन विड्रॉ किया है। इसके अलावा ऐसे स्टेट्स हैं जो 8 और मेजर स्टेट्स हैं दैट हैव विड्रॉन द जनरल कंसेंट, इंक्लूड महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला एंड मिजोरम, राइट। सो दीज आर द स्टेट्स which has actually not allowed CBI a general consent. Now, क्या impact हो सकते हैं after the withdrawing from the general consent? If you look into the issue, if particular state government does not give consent to the CBI, it means that CBI will not be able to register any fresh case involving any official from the state or from the central government or in private person without the consent of the state government, right? This is what the general procedures look like. And even talking about the ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर, जिसमें IAS, IPS और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, वो एक स्टेट में फंक्शंस करते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्रूट होते हैं, बट उनके लिए भी स्टेट की कंसेंट मैंडेटरी होती है। एंड द CBI ऑफिसर विल लूज ऑल पावर
of the police officer as soon as they enter into the state territory, right? तो जिस तरह से एक पुलिस की पावर एक फंक्शन होती है, अगर जनरल कंसेंट मिलती है सीबीआई को, तब वो पुलिस ऑफिसर की तरह पुलिस की जो रूल प्रोसीजर्स है, सीआरपी है, उसको लगा पाएंगे. अगर परमिशन नहीं मिली तो दे वुड बी एक्टिंग एज अ जनरल सिटीजन, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस and the impact of the withdrawal of the general consent. Now CBI present stand में क्या है, किस states में किस तरह की चीजें हैं. So the CBI can use Calcutta High Court order as an advantage, which has struck down by the SC कोर्ट. अगर ये SC सुप्रीम कोर्ट अगर इसको हटाती है तो कैलकाटा हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट है वेयर द विड्रॉवल ऑफ कंसेंट डज नॉट इवन मेक, जो सीबीआई को डिफेक्टिव नहीं बनाते हैं, दे कैन रिटेन इट पावर. और जो इन्वेस्टिगेशन अगर स्टेट के कंसेंट से पहले जो एफआईआर लॉन्च की गई है किसी इंडिविजुअल के लिए, तो उसके लिए वो लाइबल है, वहां पे जा करके वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वहां पे परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो इफ द स्टेट, सपोज मिजोरम ने अभी विड्रॉ किया है जनरल कंसेंट से, उससे पहले जितनी भी केसेस आई होंगे सीबीआई के पास, वो वहां पे जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट जजमेंट हैज टू से. नाउ इन सच केसेस द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दैट इज सेक्शन 176, जहां पे पुलिस ऑफिसर्स ये अलाउ होते हैं कि एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में वो अपने काम को कैरी कर सकते हैं, दे कैन कैरी फॉरवर्ड विद दिस. एंड फाइनली द कंसेंट डज नॉट अप्लाई where some of the state has been caught red-handed in bribe. अगर bribing की issues है तो वहाँ पे भी general consent की ज़रूरत नहीं पड़ती है, right? So this was in detail how the general consent can impact and what is the functioning of the CBI that can be severely impacted if the general consent is withdrawn from the states. Now, new Guinea species discovered in Tamil Nadu. This particular news is important for General Studies Paper 3. Conservation, environmental pollution, degradation and EI. So recently कुछ टीम ऑफ साइंटिस्ट ने जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं, दिस इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, दे हैव डिस्कवर्ड द न्यू गिनबेरी स्पीसीज फ्रॉम कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन तमिलनाडु, राइट? ये जो फाइंडिंग्स हैं ये पब्लिश की गई हैं लेटेस्ट इशू ऑफ नॉर्डिक जर्नल इन बॉटनी दैट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम द स्वीडन. सो ये जो डिस्कवरी है ये रिएम्फेसिस करती है यूनिकनेस जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज की, जो कि खास करके न्यू गिनबेरी है, कि एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स पे flora but adds the growing inventory in the region flora as well. क्या है गिनबेरी? You can see the images over here. So गिनबेरी species, इसकी scientific name है Glycosmus and ablycapra, right? So this has been recently discovered by the denstic large white fruit which is endemic to the southwestern Ghat. ये जो species है that belong to the origin family, that is Rutaceae. बेनिफिट्स क्या क्या है गिनबेरीज के? बिकॉज सी दिस इज समथिंग विच वुड बी अगेन रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. लोकेशन वाइज आपसे मैप वर्क या फिर इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं. सो द बेरीज ऑफ ग्लाइकोसिमस species that has been characterized as a gin almora has gained popularity over as an edible fruit. और गिनबेरीज की अगर बात करें, they are related to plant. This taxonomic group are being utilized with their medicinal values and properties. So इसकी medicinal values भी हैं, food की तरह भी से use की जाती है. Now, most commonly related to the species of this plant are collected with the wild, and many of the local use food as medicine. Now, these species are also a larval host plant of the butterflies as well. So, these were some of the important point, the factual point that you must know. Now, moving ahead with the editorial of the day, that is our data not for sale. This particular article is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sector and Issues Arising from it. तो पूरी एडिटोरियल में मैं आपके साथ कुछ 5 इंपॉर्टेंट सबहेड डिस्कस करूंगा. रिस्किंग द सिटीजन डेटा, सम कंसर्न दैट हैज बीन रेज्ड, वर्ल्ड बैंक की क्या व्यूज है डेटा कंसर्न को लेकर के, डेटा गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए इंडिया में, एंड द वे फॉरवर्ड. द एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द डेटाज लॉ एंड द सिटीजन प्राइवेसी इश्यूज. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जहाँ पे ये कही गई है कि ड्राफ्ट का नाम है ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज 2022, वेयर दे वुड बी they have proposed to selling the citizen data for a relevant purpose. But ये relevant purpose क्या होंगी, इसको लेकर के काफ़ी suspicion है. Now the policy aims to radically transform India ability to harness the public sector data. Now if passed, ये जो data होंगी ये गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है for various purposes. Now the twin purposes of this data would be adding the government to share high value asset data of Indian national for their valuation and licensing.
तो जो बात की गई है एडिटोरियल में इज रिगार्ड टू द रिस्किंग सिटीजन डेटा, किस तरह से जो सिटीजन के डेटा है उनको रिस्क की जा रही है। एक इमीडिएट रिस्क है जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के थ्रू अगर अपने पास रखती है या किसी और थर्ड पार्टी को देती है, इवन स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, बिकॉज वंस इट इज शेयर वी कैन नॉट चेक द वेयर इट इज बीइंग अगेन मूव्ड और बीइंग सेट। सो ओवर पास्ट 3 years ये देखा गया है रैपिड एक्सपेंशन हुई है, जहाँ पे जो सिटीजन के पर्सनल डेटाज है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने पेनिट्रेट किए हैं। चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, इवन मिडिल क्लास की अगर बात करें, दे हैव लिंक्ड देयर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल नंबर्स आर देयर, दैट इज अगेन वनरेबल। राइट टू प्राइवेसी की इशूज ऑलरेडी है। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्री स्टैक्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, श्रम पोर्टल में डेटाज हैं, आरोग्य सेतु में अगेन, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में है, और कुछ बच्चों टीचर्स की जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर्स में भी है। So these private data, the privacy data, the privacy of data is something a big concern, right? Which can again be vulnerable. We don't know where it is escalating and being sold out. Some concerns जो raise की गई हैं, private data की अगर बात करें, these are used as the most premium asset, right? Union government should be freely shared enriching their license with the private sector. We do not know, but definitely government can do so, because recent में जो Ministry of Road and Transport है, उन्होंने जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन की डेटा है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर की थी, बेची थी उनको, सो विच हैज लेड अ कंसर्न। नाउ इन रिगार्ड टू दैट ओनली सम कंसर्न वर आल्सो हाइलाइटेड। देयर इज नो इंडिकेशन दैट द कंसेंट वुड बी साउटिंग इन द मीनिंगफुल फॉर्म। किस पर्पज से लिए, किस इंटेंशन से की जा रही है, ये भी हमें पता नहीं होगा। It will allow government to enrich the cell data of the private sector and risk prioritizing the commercial interest or privacy. So these are some of the important points that can be highlighted. Now, World Bank की क्या views हैं इसमें? अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, दे हैव नोटेड दैट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ओपन द डेटा इज टू सपोर्ट द पब्लिक ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेल्प टू रिड्यूस द करप्शन बाय इनेबलिंग द ट्रांसपेरेंसी। सो जो मेन पर्पस होनी चाहिए इज टू इंश्योर कि ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करी है और किसी भी तरह से कोई करप्ट एक्टिविटीज को नहीं लाया जा रहा। सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक व्यूज इज, बट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग वी कैन नॉट नो। द इंटेंशन बिहाइंड the reselling of data is not known. So this principle was already being shared with the government, जहाँ पे नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट 2012 में। उसके अलावा अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन की गई है विद रिगार्ड टू राइट टू इम्प्लीमेशन एक्ट ऑल्सो। जो RTI है वो एक ऐसी प्रोसीजर्स हैं, एक ऐसी टूल है जो डेफिनेटली हेल्प करती है एक नॉर्मल सिटीजन को टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि करप्शन को रोकती है और गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट करती है। Now, data governance की अगर बात करें, this final data for reconsideration is something that has to be think upon। जो constitutional framework है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके हिसाब से हमें काम करने की जरूरत है। And this is severely impacting the data governance, जहाँ पे confusion की गई है regarding the enactment of data privacy laws। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पुट्टास्वामी के जजमेंट में ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड फर्स्ट इंग्रेडिएंट टू सेटिस्फाई द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल एंड लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जो सिटीजन की डेटा है दैट इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर फॉर एनी इंडिविजुअल, बिकॉज दिस विल बिकम वनरेबल टू एन लेवल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो रियलिटी विदाउट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सी कि क्या पीनल प्रोविजंस भी रखी जा सकती है अगर कोई मैलाफाइड प्रैक्टिसेस से डेटा को सेल की जाती है। Now, since the policy contemplates the sharing of data between the database with the center and the state government, we do not know whether it be used for the center-funded scheme or it can be prudent to deliberate further। और यहाँ पे ज़रूरत है कि राज्यसभा को भी इंक्लूड की जा सकती है, बिकॉज अगर स्टेट के साथ डेटा शेयर हो रहे हैं तो राज्यसभा की भी उतनी ही बेसिकली जो आप बात करें व्यूज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। So if this is being used for a genuine purpose, it is well and good। अगर सेंट्रल फंडेड स्कीम के लिए यूज़ की जा रही है तब तो ठीक है। अगर इसकी कमर्शियलाइजेशन या फिर प्रॉफिट के लिए पर्पस यूज़ हो रही है, सो दिस इज समथिंग दैट वुड रेज अ कंसर्न। सो द एडिटर हैज़ कन्वेड कि इसमें वापस से रीथिंक करने की जरूरत है इस तरह की ड्राफ्ट लाने से पहले। Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of your study question. For first question, the correct answer is C. For second question, the correct answer is B. आज के जो क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन मेजर एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट कमोडिटीज एंड सर्विस ओवर द टाइम। एंड इंडिकेशन, जो इन्फ्लेशन है वो इंडिकेटिव है जो डिक्रीज करती है परचेजिंग पावर यूनिट ऑफ एनी कंट्री। सो इफ यू रेड NCERT, अपने बेसिक्स पढ़े हैं, दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। सेकेंड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एट होम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर फिल्म्स एज वेल। ये जो बर्ड्स है ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में, and this happens to be the state bird of Madhya Pradesh. If you know, it's well and good. If not, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं।
So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.